Hello everyone, I am Debopriya. We are going to discuss how digital marketing can influence your business and how we can progress with the digital marketing. Because in today's world, digital marketing is the most important factor for any business that you are running and to bring it and to increase the business as a whole. So digital marketing has a thorough process and we are going to learn how these things are working. So let's understand the different process of digital marketing. And before that, let us understand what is digital marketing is all about. So when you're marketing your product digitally and online, that is what is called as digital marketing. So we need to know few techniques, how we can implement digital marketing online and bring our visibility and grow our business through that. So let us understand the process. So there are basically 6 processes. As you can see on the screen, we have visibility, bringing targeted traffic, engagement, conversions, measurement, and retention. So visibility means bringing your business in front of the customer or your audience. So how will you bring your business in front of audience or customers? There are a few simple things that we need to do. Either we can have a website of our own, or we can write a blog, or we can have a Facebook page. Either of the 3 we can have it, or you can have a YouTube channel as well. So in any cases, you have to be present in front of your customer and let them know how the things work. So let us understand the visibility in different processes. So we need to buy a domain and a hosting to create a website. तो ये थोड़ा देख लेते हैं कि हम कहाँ से domain and hosting खरीद सकते हैं. It's an overall idea of digital marketing that we are going to learn today. So you can understand how the things goes as well. It is a 360-degree application, how we can use it in our day-to-day business. Okay, so let us see how we can get to buy our website. So as we all know, we can go to GoDaddy. We have another websites as well as Hostinger, HostGator. So we can go to Hostinger as well. So from here, you need to choose a domain. So first thing that you need to know is you have to choose a domain and a hosting. Hosting का काम क्या है? Hosting is the place through which we display our website. तो अगर hosting नहीं होगा तो हम लोग domain सिर्फ खरीद के कुछ नहीं कर सकते. Hosting is the backend of your website or the domain. वहीं पे we get the total storage space, this space as you call it, the bandwidth, how fast will be your website. तो ये सब कुछ हम लोग hosting से खरीद सकते हैं. So these are the websites from where we can buy our hostings and domain. Suppose I want to purchase a domain with my name itself. So I can just write here my name. We can use any extension, say .com, and we will search for it. So they are actually checking. See, they have got the domain. So domain का जो important चीज है वो है कि if it has to be unique. If anybody else has purchased this domain with this name, I won't be able to purchase it. It has to be unique. अगर ये खरीदा हुआ है तो यहाँ पे ये बोलेगा it is not available. तो ये बोलेगा not available, we cannot buy that domain. So this is one which you can see here. We can buy with the extension .com. .com का com का full form है commercial. उसके बाद आता है .in, .online, .xyz, .live, .digital. जो भी आपको चाहते you can buy it. See, these are the prices range we can have here. We can add it to cart and then we can proceed for the payment. The same way we buy our clothes, we buy other things through internet. So this is the same way we can buy it, and then we can go to the hosting part as well and buy it. So यहाँ पे देखिए हम Hostinger से खरीद सकते हैं, GoDaddy से खरीद सकते हैं, Namecheap से खरीद सकते हैं. There are a lot of websites from where we can purchase it. We will have to purchase the hosting. The hosting के लिए I prefer Shieldhost. There are other hosting companies also from where you can purchase your hostings. तो यहाँ पे देख लीजिए कि ये सब offers है, or you can say the plan. Silver plans में you can only have single domain. Gold plan में you can add on 2 more domains. Diamond plans में you have 5 domains which you can add on. You have 100 GB bandwidth, 10 GB of disk space. So all these things will be available in the hosting plans, and there are different kinds of hosting. There's dedicated server, there are cloud hosting, there are shared hosting. So these are the shared hosting plan because they are quite cheap. So shared hosting are the most cheapest form of hosting plan that you can get. If you're starting with your business plan, you can go with your shared hostings, then you can later on change to cloud or dedicated server as you wish. So you can just press on this order now.
यहाँ पे ऐसा कुछ आएगा। अगर आपने डोमेन पहले से खरीद लिया है तो यहाँ पे आपका डोमेन नेम लिखना होगा। दिस इज द डोमेन नेम एंड दिस इज द एक्सटेंशन, डोंट राइट इट टुगेदर, डू नॉट यूज द प्रीफिक्सेस लाइक https www, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपका डोमेन नेम यहाँ पे लिखिए और .com या .in .co.in जो भी है ये चीज यहाँ पे लिखिए एंड कंटिन्यू कीजिए। फिर आपको फिलअप करना पड़ेगा आपका डेटा एंड यू कैन परचेज योर hosting from there, then you will get a mail from your hosting company। ठीक है, ये hosting का मेल आपके मेल पे आएगा, उसमें कुछ नेम सर्वर होगा, वो आपको चेंज करके you can start with your business and the way you can start with your actually website। तो यहाँ पे एक सी पैनल मिलेगा आपको, वो भी हम दिखा देते हैं so that you can understand how the things work और कैसे हम लोग इसको इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। सो यहाँ पे आइए, आप यहाँ से आपका यूजर आईडी एंड पासवर्ड ये सब आपके मेल में मिल जाएगा। यू विल गेट ऑल दिस इन योर मेल्स एंड यू विल यूज दिस यूजर आईडी एंड पासवर्ड फ्रॉम हियर। सो यहाँ पे हम पासवर्ड भी दे देते हैं। वी लॉग्ड इन हियर, और ये जो वर्डप्रेस का हम बात करें तो थ्रू विच यू कैन डिजाइन योर वेबसाइट विल बी देयर एट द बॉटम। इसको कहते हैं सॉफ्टकुलस ऐप इंस्टॉलर। यहाँ पे आपको वर्डप्रेस मिलेगा, आप यहाँ से ये वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकते हैं फॉर द डोमेन यू हैव परचेज। यू कैन इंस्टॉल इट फ्रॉम हियर, यू कैन क्लिक इट हियर, go select the domain from here. If you have purchased your SSL certificate, SSL का full form है secure socket layer। SSL का importance यही है कि it protects your website from any malware attack, so it is always recommendable to have your SSL certificates when you are purchasing or hosting। तो ये यहाँ पे अगर है SSL तो you can either go for HTTPS or you can go for HTTPS www। select your domain, इसको हटा दीजिए, हम इसको मेन रूट डोमेन में रखना चाहते हैं, रूट फोल्डर में रखना चाहते हैं, तो इसका कोई जरूरत नहीं है, इसको हटा के आप इंस्टॉल कर लीजिए। द मोमेंट यू विल इंस्टॉल यू विल गेट अ डैशबोर्ड लाइक दिस। सो मुझे इसको थोड़ा लॉग आउट करने दीजिए। सो दिस इज द डैशबोर्ड व्हाट यू विल गेट। ओके, तो व्हेन यू विल क्लिक ऑन द लिंक, तो यहाँ से एक आपको लिंक मिलेगा, अगर आप लिंक में क्लिक करेंगे तो ये खुल जाएगा एंड हियर यू हैव टू पेस्ट योर यूजर आईडी एंड द पासवर्ड विच यू हैव प्रोवाइडेड हियर। देखिए यहाँ पे आपका यूजर आईडी एंड पासवर्ड देने का जगह मिलेगा। तो जो यूजर आईडी एंड पासवर्ड आप यहाँ पे दिया है वही आपको यहाँ पे डालने को मिलेगा एंड यू जस्ट पुट योर पासवर्ड हियर। सो लेट मी गेट माय पासवर्ड, यहाँ पे हम पासवर्ड देके एंड नाउ यू विल बी एबल टू सी योर डैशबोर्ड। इस डैशबोर्ड से यहाँ पे पेजेस है, जो पेजेस मेरे वेबसाइट्स के अंदर है, आई कैन क्रिएट माय पेजेस। देखिए यहाँ पे कितना पेजेस है, उसके अंदर मेरा पोस्ट भी है, जो ब्लॉग्स हम लिखते हैं उसका लिस्ट यहाँ पे है। देखिए ये ब्लॉग्स है एंड दिस इज द वेबसाइट व्हिच हैज बीन क्रिएटेड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर वर्डप्रेस। तो इसको कहते हैं वर्डप्रेस का ये एक CMS है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। यहाँ पे आपको कुछ नहीं लगता, ये जो डिजाइन वगैरह है, थीम वगैरह ये मिल जाता है। we can just apply the themes and we just need to input our content। तो कंटेंट पुट करने के बाद जो मेन चीज आते हैं वो है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। मतलब ये वेबसाइट तो मैंने बना लिया, मगर वेदर इट इज गोइंग टू शो इट इन द रिजल्ट पेज और नॉट। तो अगर यहाँ पे कुछ ट्रैवल हम सर्च करते हैं से, अगर ऐसा हम लोग कुछ सर्च करते हैं तो यहाँ पे लिस्ट में मेरा नाम आएगा कि नहीं। देखिए यहाँ पे लिस्टिंग किया हुआ है इसीलिए यहाँ पे शो कर रहा है और मेरे वेबसाइट का डिटेल्स भी यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे देखिए मेरा वेबसाइट का नाम आ रहा है, यहाँ पे कार बुकिंग का अगर कुछ है वो आ रहा है, फेसबुक में है तो वो भी आ रहा है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सो इसको बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वी कैन, अगर हम लोग इसको वर्डप्रेस से बना रहे हैं, इट इज वेरी सिंपल। वी हैव प्लगइन्स फॉर डू एसीओ इन आवर वर्डप्रेस वेबसाइट। ये प्लगइन्स का नाम है योस्ट एसीओ। देखिए यहाँ पे आपको मिलेगा योस्ट एसीओ। इससे हम पूरा वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं, उसका जो भी एसीओ रिलेटेड क्वेरीज है, इश्यूज है, हम यहाँ से इसको सॉल्व कर सकते हैं। दैट इज वेरी सिंपल। सो वी कैन जस्ट गो टू द पेजेस। जिस पेज के लिए, तो जो इंपॉर्टेंट चीज है एसीओ का इज हाउ वी कैन सर्च द कीवर्ड्स। तो पहले हमको इसके ऊपर कीवर्ड रिसर्च करना पड़ेगा। तो अगर हम ट्रैवल के बारे में बात करें तो ट्रैवल रिलेटेड कीवर्ड्स हमको सर्च करना पड़ेगा कि कौन सा चीज हम लोग हमारे वेबसाइट में यूज करेंगे। तो ये कीवर्ड रिसर्च के लिए बहुत सारा टूल्स है। आप अगर गूगल में जाके कीवर्ड रिसर्च टूल सर्च करेंगे
सो यहाँ पे आपको बहुत सारे कीवर्ड रिसर्च टूल्स का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए फ्री, अगर हम यहाँ पे ऐसे भी आप सर्च कर सकते हैं फ्री कीवर्ड रिसर्च टूल्स। सो फ्री कीवर्ड रिसर्च टूल्स का बहुत सारा ऑप्शंस मिल जाएगा, वहां से कुछ भी आप यूज कर सकते हैं। बट लेट मी टेल यू समथिंग, फ्री में बहुत सारा ऑप्शंस नहीं मिलता। यू हैव टू गो फॉर द परचेज वन। इफ यू आर रियली सीरियसली थिंकिंग ऑफ डूइंग एसईओ इन योर वेबसाइट, तो यू हैव टू परचेज सम ऑफ द टूल्स, एनी वन ऑफ द टूल्स फॉर योर वर्क। सो यहाँ पे जो मोस्ट कन्वीनियंट टूल्स है यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, गूगल ट्रेंड्स, गूगल कीवर्ड प्लानर, उबर सजेस्ट, रेडिट, ACM Rush, Ahref. There are a lot of keyword research tools available. Google का अगर है तो आपको Google keyword, as we are talking about Google and Google से, Google के ऊपर ही हम लोग सबको सर्च इंजन डालेंगे तो सर्च करेंगे. So we can go to Google keyword research, ऐसे करके Google keyword research को क्लिक करेंगे. यहाँ से हमको Google keyword research का वेबसाइट मिल जाएगा. जस्ट क्लिक ऑन टू इट. इट्स कॉल्ड गूगल कीवर्ड प्लानर. साइन इन. ऑब्वियसली इसको, ये गूगल एड्स का पार्ट है, आपको साइन इन करके रखना पड़ेगा. आप कोई भी एक गूगल अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, उसमें से आप सब कुछ कर सकते हैं. यू कैन जस्ट साइन इन विथ योर गूगल अकाउंट. यू कैन गो टू गूगल कीवर्ड प्लानर. तो यहाँ पे आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं. सो जो मैंने पहले से बोला, आपको एक वेबसाइट क्रिएट करना है, वेबसाइट को किस कीवर्ड के ऊपर आपको रैंक कराना है, ये आप यहाँ से मिल जाएगा आपको. तो यहाँ पे आके आप डिस्कवर कर सकते हैं कुछ कीवर्ड्स का टर्म. जैसे मैं अगर दूं ट्रैवल, ओके, ट्रैवल, देन ट्रैवल एजेंसी नियर मी. सो दीज आर द कीवर्ड्स जिसके ऊपर हम रैंक कराना चाहते हैं. तो हम दो ही देके आप लोगों को दिखा देते हैं. सो वी कैन जस्ट पुट दिस टू एंड आई कैन गो फॉर गेट रिजल्ट. सो गूगल हमको क्या करेगा, अकॉर्डिंग टू माई सर्च ये कुछ रिजल्ट हमको दिखा देगा. देखिए, टूर प्लानर, रोड ट्रिप, लगेज. सो यहाँ सब ट्रैवल एजेंसी मैंने दिया है, तो ट्रैवल एजेंसी भी हम यूज कर सकते हैं. टूर ऑपरेटर भी आप यूज कर सकते हैं. सो अगर कोई ढूंढेगा तो आपका नाम आ जाएगा लिस्ट में. सो इसके लिए आप ऐसे यहाँ से जाके पूरा चीज यहाँ से देख सकते हैं कि क्या क्या यूज हो रहा है, उसका सर्च वॉल्यूम कितना है. अकॉर्डिंगली यू कैन यूज देम इन योर पेजेस. इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं. ये पूरा बहुत सारा चीज आप लोग यहाँ से कर सकते हैं. बट फॉर अ बिगिनर दिस इज द वे वी सर्च कीवर्ड्स. ये कीवर्ड्स हम लोग को ढूंढ के निकालना है, इसमें से कौन सा कीवर्ड हमारे वेबसाइट में हमको यूज करना है. वी हैव टू प्लान एंड वी कैन डायरेक्टली गो टू आवर वेबसाइट. दिस इज द वेबसाइट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट एंड वी कैन डू गो टू अ पेज और अ पोस्ट जिसमें हमको ये देना है. तो यहाँ पे आपको ये इसको क्लिक करके देखिए, यहाँ पे हमने बोला था कि योस्ट एसईओ आपको इंस्टॉल करके रखना है फॉर योर एसईओ. सो यहाँ पे योस्ट एसईओ है. यू जस्ट गो हियर. देखिए नीचे आप जाइए, यहाँ पे आपका योस्ट एसईओ का पूरा पार्ट यहाँ से शुरू होता है. यहाँ पे आपको देना पड़ेगा आपका टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन. टाइटल डिस्क्रिप्शन है क्या, यहाँ पे जो आप देखते हैं ना, दिस इज व्हाट वी कॉल एज टाइटल एंड ये जो चीज है इसको बोलते हैं हम डिस्क्रिप्शन. तो ये टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड्स देना बहुत जरूरी है. तो मेरा कीवर्ड्स ट्रैवल्स है, तो ट्रैवल्स इस कीवर्ड्स में अंदर है. तो ये डिस्क्रिप्शन के अंदर भी है, हेडलाइन में भी है, तो टाइटल में भी है. सो ये चीज हम लोग यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हैं. देखिए यहाँ पे हम लोग एसईओ टाइटल दे सकते हैं, डिस्क्रिप्शंस दे सकते हैं. अकॉर्डिंगली हम हमारा यूआरएल का जो जाएगा यहाँ पे, इसका भी हम यहाँ से दे सकते हैं. सो ये मेरा डेस्कटॉप व्यू है जो आप यहाँ से देखा, दैट इज हाउ इट इज शोइंग है. तो हर एक पेज के लिए we have to create a unique title and description. So ये एक मेन पार्ट हो गया एसईओ का. अगर हम ये ठीक से कर सकते हैं तो we can rank easily on the search engine result page. ये जो हम देखते हैं ना, इसको search engine result page बोलते हैं. So we can rank easily in the search engine result page. तो ये हो गया एसईओ एंड वर्डप्रेस के बारे में. Then we can shift on to social media marketing and optimization. As I said, मेरे पास वेबसाइट भी है, मेरे पास सोशल मीडिया का पेज भी है. सो इस वेबसाइट का एक पेज भी है जिसमें फॉलोअर्स है, उसमें हम लोग कैंपेन्स भी रन कर सकते हैं. रेगुलर पोस्ट करना जरूरी है. यहाँ पे हम लोग अगर इंस्टाग्राम है तो इंस्टाग्राम भी यहाँ पे
आप लिंक कर सकते हैं। अगर इंस्टाग्राम का आपका प्रोफेशनल अकाउंट है, आप यहाँ पे देखिए मेरा भी इंस्टाग्राम का अकाउंट है जो यहाँ से लिंक्ड है, तो मेरा पूरा इंस्टाग्राम अकाउंट यहाँ पे लिंक्ड है। जो भी हम लोग यहाँ पे पोस्ट करेंगे वी कैन पोस्ट सेम दैट इन इंस्टाग्राम, एंड दोनों प्लेटफॉर्म में साइमल्टेनियसली हम लोग काम कर सकते हैं। एंड दिस इज अ ग्रेट वे ऑफ इंक्रीजिंग विजिबिलिटी ऑफ योर बिजनेस। हम लोग विजिबिलिटी के बारे में बात कर रहे थे, तो दिस इज द वे वी कैन इंक्रीज आवर विजिबिलिटी। एंड आप लोग तो कैंपेन्स यहाँ से प्रमोट कर ही सकते हैं। आपका अगर पेज है तो पेज में आप आपका कैंपेन प्रमोट कर सकते हैं। किसी अगर आपको लीड्स चाहिए होगा, अगर आपको लोकल बिजनेस चाहिए होगा, आपको एंगेजमेंट चाहिए, whatever you want, you can just promote your business from here. So if you click on this button, you will be seeing different kinds of promotions. आप मैसेज चाहिए, आपको एक बूस्ट पोस्ट को बूस्ट करना है, इंस्टाग्राम पोस्ट को बूस्ट करना है, पेज को बूस्ट करना है, प्रमोट करना है, कॉल्स चाहिए आपको, लोकल बिजनेस में आपको चाहिए कि आपके ऑफिस में आके लोग आपसे बात करें, व्हाट्सएप में मैसेज चाहिए आपको, विजिटर्स चाहिए वेबसाइट की, और लीड्स चाहिए, जो भी आपको चाहिए आप यहाँ से ये कर सकते हैं। सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज विजिबिलिटी एंड इंक्रीजिंग विजिबिलिटी ऑफ आवर बिजनेस। तो ये हो गया विजिबिलिटी का पार्ट। तो देखिए यही हम लोग बात कर रहे थे कि व्हाट आर द विजिबिलिटीज। ओन्ड में हमने बोला था कि आप वेबसाइट, ब्लॉग, ई बुक्स, वीडियो, सोशल प्रोफाइल्स कुछ भी बना सकते हैं। पेड में भी हम लोग बोल दिया कि फेसबुक एड, गूगल एड्स, हमने फेसबुक एड्स अभी दिखाया, गूगल एड्स इज सिमिलर। उसके बाद हम अर्न मतलब सर्च इंजन रैंकिंग, ये भी मैंने बोल दिया कि हाउ यू कैन गो फॉर सर्च इंजन रैंकिंग और ऑप्टिमाइजेशन, दैट व्हाट वी कॉल एज। यू कैन गो फॉर वायरल मार्क। अगर आपका कंटेंट बहुत अच्छा है, एक कॉन्सेप्ट है फेसबुक का स्टोरी बम्पिंग, अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो ये ना आपका टाइमलाइन के नीचे नहीं चला जाएगा, इट विल ऑलवेज शो ऑन द टॉप ऑफ द फीड एंड इट विल इंक्रीज द व्यूज ऑफ योर कंटेंट। मोर व्यूज ऑफ योर कंटेंट, इट विल बी वायरल। सो दिस इज हाउ द थिंग वर्क्स इन डिजिटल वर्ल्ड, राइट। तो ये हो गया हमारा विजिबिलिटी। विजिबिलिटी के बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है ब्रिंगिंग टारगेटेड ट्रैफिक। तो ये टारगेटेड ट्रैफिक आने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तो हमको टारगेटिंग ठीक से करना पड़ेगा कि हम किसको ये एड दिखाए, और अगर हम लोग कुछ बना रहे तो कैसा कीवर्ड्स हम लोग यूज करें कि जो ये सर्च करे तभी उन लोगों को ये मेरा चीज दिखाए। जो दैट इज द थिंग दैट आई वाज शोइंग राइट नाउ, कि अगर हम लोग वर्ड ठीक से, अगर हम ट्रैवल्स के रिलेटेड कुछ ढूंढेंगे तो ये चीज दिखाएगा। यहाँ से मेरा बिजनेस लिस्टिंग भी है तो बिजनेस लिस्टिंग के लिए ये चीज भी यहाँ पे आ रहा है। देन फेसबुक में हम लोग नॉर्मली अगर कोई ट्रैवल यहाँ पे ढूंढेगा, हम लोग जस्ट नॉर्मल पेज में अंदर जाके अगर कोई ट्रैवल ढूंढता है या ट्रैवल ओरिएंटेड चीज ढूंढेगा तो मेरा पेज का लिस्ट यहाँ पे आना चाहिए। सो दीज आर द थिंग्स वी हैव टू बी श्योर ऑफ। एंड जो टारगेटिंग एंड ब्रिंगिंग पोटेंशियल कस्टमर्स का बात है, अगर हम प्रमोट करना चाहते हैं पेज, एक बार आपको दिखा देते हैं। एंड देखिए यहाँ पे एक ऑडियंस सेटिंग है। ऑडियंस सेटिंग का मतलब है कि आप किस रेंज के ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हैं, अकॉर्डिंग टू देयर एज, अकॉर्डिंग टू देयर लोकेशन, अकॉर्डिंग मेल या फीमेल, जेंडर, एंड द डिटेल टारगेटिंग। डिटेल टारगेटिंग मतलब है आपका इंटरेस्ट क्या है, आप ढूंढते क्या है इंटरनेट में, और आप अगर कुछ सब्सक्राइब करके रखा हुआ है, अगर आपने कुछ ब्रोशर डाउनलोड किया है, अगर आपने कुछ एयर टिकट या कुछ बुक किया है, आपने कुछ मूवी टिकट बुक करी, आपका कुछ एक्टिविटी है इंटरनेट में, और अगर आप कुछ पढ़ते हैं, ढूंढते, वो आपका इंटरेस्ट है। सो अकॉर्डिंग टू द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ दे विल ट्राई टू टारगेट द ऑडियंस। ये ऑडियंस टारगेटिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, क्योंकि यहाँ पे हर एक चीज आप मेजर कर सकते हो, कितना पैसा आप खर्च कर रहे हो, पर कॉस्ट कितना आ रहा है, एवरीथिंग कैन बी मेजरेबल डिजिटल मार्केटिंग। तो यहाँ पे देखिए आप ऑडियंस यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको हम एडिट करते हैं तो पूरा चीज आपको मालूम पड़ेगा। यहाँ पे जेंडर्स में है ऑल मेन वुमेन, एज ग्रुप है तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम 13 to 65, लोकेशन सब कुछ भी डाल सकते हैं, एंड डिटेल टारगेटिंग में आप ब्राउज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट, बिहेवियर, एंड अगर मोर कैटेगरीज में जाएंगे तो आपको दिखाएगा। अभी कुछ है नहीं तो तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट एंड बिहेवियर। डेमोग्राफिक्स मतलब आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपका फाइनेंशियल स्टेटस, आपका रिलेशनशिप स्टेटस, आपका वर्क स्टेटस, ये सब डेमोग्राफिक्स के अंदर पड़ता है। इंटरेस्ट मींस व्हाट यू आर इंटरेस्टेड इन। देखिए यहाँ पे है इंफॉर्मेशन आएगा, एंटरटेनमेंट, फैमिली एंड रिलेशंस, फिटनेस, फूड एंड ड्रिंक। सो ये सब कुछ यहाँ पे शो कर रहा है। बिहेवियर क्या है,
सेम चीज आप डिजिटल एक्टिविटी ज्यादा करते हैं या मोबाइल यूजर है, आप क्या करते हैं, कौन से ब्राउजर में आप ढूंढते हैं चीजें, सो ये सब कुछ बिहेवियर्स के अंदर पड़ता है. सो दिस इज द वे वी टारगेट आवर ऑडियंस. अगर ये टारगेटिंग ये स्ट्रेटेजी हम लोग ठीक से फिक्स कर सकते हैं, देन वेन वी कैन अर्न अ लॉट थ्रू दैट, यू नो. सो वी हैव टू प्लान इट अकॉर्डिंगली एंड वी कैन प्रोसीड आवर थिंग्स. तो ये हो गया हमारा एंगेजमेंट. उसके बाद आता है कन्वर्शंस. कन्वर्शंस का मतलब है कि हाउ विल यू कन्वर्ट इट. सो कन्वर्शंस आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स. वन इज कॉल्ड वर्टिकल कन्वर्शंस, अनदर इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल कन्वर्शंस. वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कन्वर्शंस के सिवा भी और है माइक्रो एंड मैक्रो कन्वर्शंस. माइक्रो मतलब जब हम लीड्स जनरेट करते हैं या अगर कोई वेबसाइट ट्रैफिक बढ़ रहा है, तो इसमें कोई डायरेक्ट मॉनिटरी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मगर ये कन्वर्ट हो रहा है. तो मैंने एक कैंपेन रन किया टू इंक्रीज वेबसाइट ट्रैफिक, तो ऑब्वियसली माय वेबसाइट ट्रैफिक इज इंक्रीजिंग. मैंने एक कैंपेन रन किया टू प्रमोट माय फेसबुक पेज, तो वो भी इंक्रीज हो रहा है. तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज कन्वर्शंस. Conversion, and this kind of conversions are micro because it is not involving money directly, इनडायरेक्टली मे बी बट नॉट डायरेक्टली. मगर अब अगर कोई प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं, आपने एक फोन खरीदा, तो आपको वो पैसा तभी देना है, और यू कैन जस्ट गो टू शिफ्ट टू ईएमआई, बट स्टिल द बैंक इज पेइंग इट फॉर ऑन योर बिहाफ एंड यू आर पेइंग टू द बैंक. सो ये एक डायरेक्ट मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस होता है. सो दैट इज अ मैक्रो कन्वर्जन. सो whenever we have started our business, we should always focus on converting the business. अगर ये conversions proper नहीं होगा तो business run नहीं करेगा. तो दो first three factors में जो मैंने बोला, visibility, bringing targeted traffic and engagement, ये चीज हम लोग को करना है to convert. तो ये जितना अच्छा होगा conversion rate उतना अच्छा होगा. So these three are the main factors of conversion. So conversions अगर होता है तो business run होता है, conversions अगर नहीं होगा तो business run नहीं होगा. Strategy plan कीजिए and convert कीजिए, and that is the best way to grow your business digitally and through online ways. You know, online में बहुत सारा चीज है, यहाँ पे 60% less cost than traditional marketing लगता है. So, ऐसा नहीं कि you are spending too much on this. No. And this is the industry now. This is the industry because हम लोग घर बैठ के सब कुछ कर सकते हैं. Buying from groceries to booking tickets to everything. We have become basically lazy. You know, we do not like to go out and buy and purchase things. Even food order करना है तो हम घर बैठ के order कर सकते हैं. Ambience शायद नहीं मिलेगा, ambience के लिए हमको restaurants में जाना पड़ेगा. That's it. Then we are coming into the measurement part. Measurement हम लोग बहुत चीज से कर सकते हैं. हम Facebook का measurement और Google Analytics का measurement दोनों ही आपको दिखा देते हैं so that you can understand the things. फेसबुक का मेजरमेंट करने के लिए हमको जाना पड़ेगा इनसाइट, पेज का इनसाइट में. तो इस इनसाइट में जाके आपको पता चल जाएगा कि कितना लोग इस पेज पे आया है, हाउ मेनी पेज लाइक्स हैव गॉट, व्हाट इज द रिस्पांस. यहाँ पे सब कुछ, कितना फॉलोअर्स आया है, एड्स से कितना आपको प्रमोशंस मिला है, कितना आपका ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक ट्रैफिक है. यहाँ पे देखिए ऑर्गेनिक, ये पोस्ट बूस्ट नहीं है, इसमें कोई कैंपेन नहीं रन किया था, तो ऑर्गेनिक ट्रैफिक 127 है, इसका 125 है. तो ऐसे करके आप जितना भी पोस्ट बनाया है आपका, उसका पूरा डिटेल्स आपको पता चल जाएगा. सी every detail you will be able to find out. Reactions and comment, post clicks, so ये blue वाला is the post click and reaction comment is this one. तो जो भी है सबका डिटेल्स यहाँ पे आपको मिल जाएगा. अगर आपने कुछ कैंपेन रन किया, उसमें से पेड प्रमोशंस कितना हुआ, ऑर्गेनिक कितना हुआ. ऑर्गेनिक एंड पेड का डिफरेंट ये है, ऑर्गेनिक नेचुरली होता है, पेड अपने पैसा देके उसको बूस्ट किया है. तो ये दोनों चीजें आपको करना पड़ेगा इफ यू वांट टू रन योर बिजनेस ऑनलाइन. ठीक है, तो ये आप यहाँ से मेजर कर सकते हैं. अगर आप एड्स मैनेजर में जाके देखेंगे तो आपका पर रिजल्ट कॉस्ट कितना आ रहा है वो भी आप मेजर कर सकते हैं. तो वो भी आप हमको दिखा देते हैं. So we have to go to this ads. So this is a dashboard. We can change the timing कि ये पुराना मार्च से थोड़ा देख लेते हैं, मार्च टू अप्रैल से. यहाँ पे आपका कॉस्ट पर रिजल्ट्स आएगा, आपका रिजल्ट्स दिखाई देगा, रीच एंड इंप्रेशंस में दिखाई देगा कितना आपको कितना लोगों तक पहुंचा, कितने बार वो लोग देखा, अमाउंट कितना स्पेंड हुआ. All the details you can actually view it from here. This is what we call as Ads Manager dashboard. ये Facebook का है. हम Facebook से बोल रहे हैं क्योंकि आप लोग Facebook से familiar हो, आप Facebook कर चुके हो. I think each and everyone in this world has a Facebook account. So Facebook से समझना easy है. Google complicated नहीं है, मैं Google का डैशबोर्ड थोड़ा अलग है. सो हम लोग जो गूगल में दिखाएंगे, गूगल में भी हम मेजरमेंट कर सकते हैं. तो ये है गूगल एनालिटिक्स. ये तो दिस इज द गूगल एड्स कीवर्ड प्लानर जो मैंने बोला.
एंड दिस इज एनालिटिक्स डैशबोर्ड। तो ये मेरा वेबसाइट का एनालिटिक्स है जो आप देख सकते हैं यहाँ पे। दिस इज द लास्ट 7 days व्यू। इसको अगर हम थोड़ा 90 days व्यूज में चला जाएंगे तो व्यूज ऐसा कुछ आएगा। देखिए ऐसा कुछ व्यूज आएगा, इसका यूजर्स, इसका न्यू यूजर्स कितना है, ये सब कुछ यहाँ पे दिखाएगा। अगर वेबसाइट आप खोल के रखा है कहीं पे तो वेबसाइट का डिटेल्स भी यहाँ पे शो करेगा कि एक यूजर अभी यूज कर रहे हैं वेबसाइट। तो ये सब डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज मेजरमेंट। मेजरमेंट में आप लोग सब कुछ मेजर कर सकते हैं, कितना कितना लोग न्यू यूजर्स कितना ही। देखिए यहाँ पे जैसे एक्विजिशन में अगर हम जाते हैं, new users, this is the total number of users, this is the new users, and which are the pages through which they have come। organic referral मतलब दूसरे कहीं पे हमारा वेबसाइट था, वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है वहां पे आया है। दिस इज ऑर्गेनिक मतलब ऑटोमेटिकली जस्ट ट्रैवल रिलेटेड को सर्च किया, फ्रॉम देयर दे हैव गॉट इट, सो दे आर गिविंग द थोरो रिजल्ट ऑफ इट। तो यहाँ पे देखिए ये वेबसाइट अभी खुला है, इसीलिए यहाँ पे दिखा रहा है one user is open right now। so this is how we see it। engagement मतलब कितना pages में कितना time दे रुका, how much time they spent on each pages, that is also being visible here। यहाँ पे देखिए दिस इज द टाइम 30 सेकेंड्स के लिए रुका था। दीज आर द व्यूज ऑफ द पेजेस, कितना पेजेस को व्यू किया, ओवर अकॉर्डिंग टू द ओवर टाइम कितना पेजेस में ये लोग गया, इसका पूरा डिटेल्स यहाँ पे आपको मिलेगा। सो दिस इज व्हाट वी एज वी कॉल इज द स्टिकीनेस, मतलब हाउ लॉन्ग दे आर इनटू इट। सो ये हो गया एनालिटिक्स का पार्ट। सो दिस इज एन ओवरऑल कॉन्सेप्ट दैट वी आर ट्राइंग टू गिव यू कि अगर आप एक वर्डप्रेस एक आप वेबसाइट बनाएंगे या एक पेज बनाएंगे या आप एक यूट्यूब में चैनल बनाएंगे तो आपको पूरा 360 डिग्री तक पूरा होल एज अ होल आपको पूरा चीज या कर सकते हो डिजिटली। एंड यू कैन इंक्रीज योर बिजनेस, लीड्स जनरेट कीजिए, उसमें से उसको कन्वर्ट कीजिए, आप प्रोडक्ट को सेल करिए, कुछ भी करिए, कोई भी आपका अगर है। जैसे यहाँ पे देखिए मेरे वेबसाइट पे एडसेंस भी चलता है। एडसेंस का मतलब ये है कि गूगल इज पेइंग मी इफ समबडी इज क्लिकिंग ऑन इट। तो अगर आपका ब्लॉगिंग वेबसाइट है, दिस इज द बेस्ट वे ऑफ अर्निंग। आप यहाँ पे अगर आपका ट्रैफिक बहुत अच्छा है, यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया होता है अप्रूवल मिलने के लिए। अगर आपका पास अच्छा ट्रैफिक है, अगर आपका यूजर इंटरफेस अच्छा है तो आपका वेबसाइट में गूगल खुद ऐड देगा। तो ये गूगल का ऐड यहाँ पे चल रहा है, ये देखिए। अगर आप यहाँ पे आपका माउस लेके जाएंगे तो यहाँ पे दिखाएगा एड्स बाय गूगल। सो ये गूगल एड्स यहाँ पे रन कर रहा है। तो अगर इसमें कोई क्लिक कर रहा है, गूगल इज ऑन द अदर हैंड पेइंग मी। सो दिस इज अ पैस। सो यू जस्ट गो एंड सिलेक्ट गूगल। जैसे इस अकाउंट इज एन एडसेंस अकाउंट, ये है चल रहा है, यहाँ पे अभी इतना बैलेंस है। तो ऐसा आपका एक डैशबोर्ड आ जाएगा, आपके पास एक कोड जाएगा जो आपको वेबसाइट के बैकएंड में पेस्ट करना है। उसके बाद अगर अप्रूवल मिल जाएगा तो ये आप देख सकते हो। सो प्लीज, दिस इज अ ओवरऑल कॉन्सेप्ट दैट वी आर ट्राइंग टू गिव यू अबाउट डिजिटल मार्केटिंग सो दैट यू लर्न इट एंड यू डू इट। इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट द थिंग दैट यू नीड टू डू इज यू हैव टू बी वेरी एक्टिव इनफ एंड स्टार्ट growing your business digitally। Hope you understood the whole concept and soon to see you in the institute so that you can learn digital marketing well and start and grow your business. Thank you so much.